اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم چیپٹر نمبر 1 سٹارٹ کریں گے۔ چیپٹر نمبر 1 کے جو سٹارٹنگ ٹاپکس ہیں ان میں کمپیوٹر کا انٹروڈکشن دیا گیا ہے کہ کمپیوٹر کیا ہوتا ہے، کس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، پھر کون کون سی ایسی پلیسز ہیں جہاں پر کمپیوٹر کو استعمال کیا جا رہا ہے، پھر ہسٹری آف کمپیوٹر ہے۔ تو یہ سیکوینس ہے، ہم ٹاپک اس کے آج سے سٹارٹ کریں گے۔ تو سب سے پہلی بات، جس چیز کے بارے میں ہم ایک پوری کتاب پڑھ رہے ہیں اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے یہ ہے کیا۔ جب کمپیوٹر کا ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ہی بات آتی ہے کہ مانیٹر، سسٹم یونٹ، کی بورڈ، ماؤس، اس طرح کی چیزیں جو ہمیں سامنے نظر آئیں گی یہی کمپیوٹر ہے۔ تو یہاں پر آج کے لیکچر میں بتاؤں گا کہ صرف کمپیوٹر وہ نہیں، وہ تو ایک شیپ بن گئی۔ ہم نے یہ جو سمارٹ فون اٹھائے ہوئے ہیں یہ بھی کمپیوٹر ہے۔ کس کیٹیگری کے کمپیوٹر ہیں وہ میں آج کے لیکچر میں ایکسپلین کروں گا۔ پھر اتنے بڑے بڑے کمپیوٹر جو سپر کمپیوٹر اور مین فریم ہمارے اسی چیپٹر کے آگے کلاسیفیکیشن آف کمپیوٹر میں وہ کیسے ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے کام کرتے ہیں اور کس مقصد کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو یہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہوں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں جی، واٹ از اے کمپیوٹر؟ کمپیوٹر کیا ہے؟ تو اگر اس کا لفظی مطلب ہم نکالیں تو یہ کہا جاتا ہے کمپیوٹر ورڈ has been derived from the word compute, which means to count or calculate. Computer word has been derived from compute, and compute means to count or calculate, to count or calculate. کیلکولیٹ کرنا، کوئی حساب کتاب کرنا۔ پھر ایک ڈیوائس ہم نے اٹھائی ہوئی ہوتی ہے جیسے ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کیلکولیٹر، کیلکولیٹ کرنے والا، جس سے ہم بہت ساری کیلکولیشنز کر رہے ہوتے ہیں۔ کیلکولیٹ کرنے والا کیلکولیٹر ہے۔ کاؤنٹ گننا، کاؤنٹر گننے والا۔ کمپیوٹ کا مطلب کیا ہے؟ گننا، کمپیوٹیشن کرنا، حساب کتاب کرنا، گننا۔ مین جو ورڈ ان تمام سے ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کاؤنٹ کرنا، گننا۔ اردو میں جیسے ہم گننا کہتے ہیں۔ کمپیوٹر کا ورڈ نکلا کمپیوٹ سے جس کا مطلب ہے گننا، کاؤنٹ کرنا، گننا۔ تو اگر یہاں پر میں ایک فریز لکھ دوں، ایک سینٹینس لکھ دوں کہ any machine that can help us in counting is called computer، اگر میں اسے سمپل سے ورڈز میں ڈیفائن کروں تو اس کے لفظی مطلب سے تو یہی پتہ چل رہا ہے کہ کوئی بھی ایسی مشین جو ہمیں کاؤنٹ کرنے میں، گننے میں مدد دے گی، کمپیوٹ کرنے میں مدد دے گی، وہی کمپیوٹر ہوگی۔ تو یہاں پر میں یہ سینٹینس لکھ رہا ہوں، any machine that can help us in counting is called computer۔ یہ سمپل ورڈز میں اگر میں ایسے ایکسپلین کروں سمپل، تو میں لاجک بھی بتاؤں گا کہ کس طرح مشین ہمیں کاؤنٹنگ میں مدد کرنے والی کمپیوٹر کہلائے گی۔ تو میں نے یہاں پر سامنے لکھا کہ کوئی بھی ایسی مشین، کوئی بھی ایسی ڈیوائس جو کاؤنٹنگ میں مدد کرے گی، گننے میں مدد کرے گی، وہ کمپیوٹر ہوگی۔ یہ کہاں سے میں نے ایک سینٹینس نکالا؟ کیونکہ کمپیوٹر کا ورڈ نکالا گیا کمپیوٹ سے۔ کمپیوٹ کا مطلب ہی گننا ہے، کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو
اگر کمپیوٹ کا لفظی مطلب گننا ہے تو کمپیوٹر کیا ہوگا؟ گننے والا۔ کمپیوٹ کا مطلب اگر میں کہہ دوں کیلکولیشنز ہیں، کاؤنٹنگ کرنا ہے، گننا ہے، کیلکولیشن کرنا ہے، تو کمپیوٹر کیا ہوگا؟ کمپیوٹ کرنے والا، کاؤنٹ کرنے والا، گننے والا۔ اب یہ گننے سے کیسے آگے ہم لے کر جائیں گے اس ٹاپک کو، کس طرح سے اس کو ایکسپلین کریں کہ گننے والی چیز کمپیوٹر ہے؟ میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج کل ہم نے وہ ڈیجیٹل تسبیحاں اٹھائی ہوئی ہیں، پڑھ کے ٹک ٹک کر رہے ہوتے ہیں، اوپر آ رہا ہوتا ہے کہ ہم فلاں جو بھی تسبیح ہم پڑھ رہے ہیں، جو بھی ورد ہم کر رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، وہ اتنی بار ہو چکا ہے۔ میں نے اگر 500 بار پڑھنا ہے درود شریف تو میں پڑھتا رہوں گا، ساتھ ساتھ بٹن پریس کرتا رہوں گا، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھوں گا کتنی بار ہو چکا ہے۔ تو اب وہ تسبیح کیا کام کر رہی ہے؟ گننے میں مدد دے رہی ہے، کاؤنٹ کرنے میں ہماری مدد کر رہی ہے۔ تو میں یہی کہوں گا کاؤنٹ کرنے میں مدد کر رہی ہے تو وہ بھی کمپیوٹر ہے۔ اس سینٹینس کے مطابق تو وہ جو ڈیجیٹل تسبیح ہے وہ بھی ایک کمپیوٹر ہے۔ کیوں؟ کاؤنٹنگ میں مدد تو کر رہی ہے، کاؤنٹنگ میں مدد کر رہی ہے۔ اب کمپیوٹر کا جو بیسک کام تھا، بیسک پرپس تھا، وہ کاؤنٹنگ کرنا ہی تھا۔ تو سٹارٹ سے میں ذرا آتا ہوں کیسے کاؤنٹنگ کرنا اس کا پرپس تھا، اور پھر آج کل کے کمپیوٹر کاؤنٹنگ سے ہٹ کر کون کون سے کام اور مزید کر رہے ہیں۔ آج کل کاؤنٹنگ کس کو کہا جا رہا ہے، کس طرح سے کاؤنٹنگ ہو رہی ہے، پروسیسنگ ہو رہی ہے، تو یہ ہمارے آج کے ٹاپک میں شامل ہے۔ تو آپ چیپٹر نمبر 1 پہ پیج نمبر 1 اس کے نیچے ایک لکھا ہوا ہے ابیکس کا ٹاپک ہے، اس کو اگر آپ ریڈ کریں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ پہلا کمپیوٹر تھا۔ ابیکس پہلا کمپیوٹر تھا۔ کتنے سال پہلے استعمال ہوا؟ 5000 سال پہلے استعمال ہوا۔ تھا کیسا؟ کیا مانیٹر تھا اس کے ساتھ، کی بورڈ تھا، ماؤس، یہ ساری ڈیوائسز تھی؟ نہیں تھی۔ تو وہ پھر کیسے کمپیوٹر ہو گیا؟ تو ابیکس کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ایک لکڑی کا ریک تھا۔ اٹ واز اے ووڈن ریک، ووڈن ریک بنا ہوا تھا۔ اب اس میں ایک تارے سی لگا دی، ان کے اندر بیٹس چھوٹے چھوٹے موتی لگا دیے گئے۔ میں سمپل سا بتا رہا ہوں کہ اس سے سمپل کاؤنٹنگ کیسے کی جاتی تھی۔ تب لوگوں کو یہ تو پتہ نہیں تھا 1 2 3 4 کیا ہے۔ مثلا اس سے میں کاؤنٹنگ کر رہا ہوں، کیلکولیشن کر رہا ہوں، کیسے کر رہا ہوں؟ میرے پاس 3 چیزیں اویلیبل ہیں، گندم، آٹا اور چینی، اس کے مختلف گٹو سے بنے ہوئے۔ میں اسے کاؤنٹنگ کیسے کروں گا؟ 1 2 3 4 کا تو کانسیپٹ نہیں ہے۔ میرے پاس 3 بوریاں آئیں، میں نے کیا کیا؟ 3 موتی اس سائڈ پہ کر کے سینٹر میں دھاگا باندھ دیا۔ فار ایگزامپل یہ بیچ میں کوئی دھاگا سا باندھ دیا، یا کوئی بھی ریممبر کرنے کے لیے کوئی بھی نشانی جو وہ لگاتے تھے وہ بیچ میں آ گئی۔ اب اس کا کیا مطلب ہے کہ میرے پاس گندم کے اتنے یونٹ اویلیبل ہیں۔ اب اگر ایک بوری میں نے سیل آؤٹ کر دی، یہ دھاگا ہٹایا، ایک موتی اس سائڈ پہ کر دیا، دھاگا ہٹایا تو ایک موتی اس سائڈ پہ کر دیا۔ اب اس سے کہا جاتا ہے یہ جو ابیکس ہے، لکڑی کا ایک ریک بنا ہوا ہے، استعمال ہوا 5000 ایئرس اگو، 5000 سال پہلے۔ اس کو کہا جاتا ہے یہ فرسٹ کمپیوٹر تھا، فرسٹ کمپیوٹر۔ یہ کیسا کمپیوٹر ہے؟ جس میں موتی لگے ہوئے ہیں اور لکڑی کا ریک سا بنا ہوا ہے، اس میں بیچ میں تارے سی لگی ہوئی ہیں۔ تو یہ تو ہمیں کوئی مووی نہیں دکھا رہا، ہم اس پہ کوئی گیم نہیں کھیل سکتے، ہم نے تو یہی کانسیپٹ لیا ہوا ہے نا، کمپیوٹر یہ کام کرے گا۔ اب اسے کیوں کمپیوٹر کہا گیا؟
बेसिक अगर इस लाइन को हम पढ़ें कि कोई भी मशीन जो काउंटिंग में हेल्पफुल होगी, जिसकी मदद से हम काउंटिंग कर सकेंगे, तो अब इसको अगर गौर से देखें, जो मैंने इसकी वर्किंग बताई, क्या किया जा रहा है, इसकी मदद से काउंटिंग की जा रही है, गिना जा रहा है कि हमारे पास कितने यूनिट्स अवेलेबल हैं, कौन से हमने सेल आउट कर दिए, गिना जा रहा है, काउंटिंग की जा रही है। और भी कैलकुलेशन इससे की जा सकती थी। बेसिक पर्पस था काउंटिंग करना, कैलकुलेशन करना। तो आजकल कहा जाता है कि सबसे पहला कंप्यूटर ये वाला था, अबैकस। अब इससे क्या किया जा रहा है, गिना जा रहा है, काउंट किया जा रहा है। तो अगर ये पहला कंप्यूटर है तो ये लाइन अब करेक्ट होगी कि कोई भी मशीन जो काउंटिंग में मदद करेगी वो कंप्यूटर है। कंप्यूटर को नाम तो बाद में दिया गया 1642 के अंदर, ऐसे नाम दिया गया ये कंप्यूटर है। कंप्यूटर का जो मेन वर्ड एक आया था वो भी, उसमें भी मैं आता हूँ। तो इसे कहा जाता था आजकल कि ये पहला कंप्यूटर था, क्या कर रहा है, काउंटिंग में मदद दे रहा है। तो अभी शुरू में मैंने कहा कि तस्बीह जो हमने उठाई हुई है, टिक टिक कर रहे हैं, काउंटिंग हो रही है उससे, तो फिर इसके मुताबिक तो वो तस्बीह भी कंप्यूटर है। तो अबैकस बना, उससे कैलकुलेशंस के मुख्तलिफ काम हुए। लकड़ी का एक रैक था, कोई स्क्रीन वगैरह नहीं थी, कोई कीबोर्ड माउस वगैरह इसके साथ इस्तेमाल नहीं होते थे, मैनुअली सारी इससे कैलकुलेशन हम करते थे। तो ये पहला कंप्यूटर से नाम दिया गया। अब फिर बाद में बहुत सारी डिवाइसेस बनी। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में जब हम पढ़ेंगे उसमें बहुत सारी डिवाइसेस का जिक्र आया। फलां साइंटिस्ट है, उसने ये डिवाइस बनाई, एनालिटिकल इंजन बने, ये वो बनते 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 ज़रा शार्ट करके हिस्ट्री को, क्योंकि उसका अपना एक अलग टॉपिक है, उसमें मैं कंप्लीट बताऊंगा कौन सी डिवाइस कब किसने बनाई, वो कैसे काम करती थी। 1642 की ज़रा बात करते हैं। 1642 में एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था पास्कल। पास्कल ने एक डिजिटल कैलकुलेटर बनाया था, डिजिटल कैलकुलेटर, जिसको पास्कल ने नाम दिया था पैस्कलाइन कैलकुलेटर। अपने नाम के साथ उसने जोड़ा पैस्कलाइन कैलकुलेटर, इसने उसका नाम रखा था। अब कैलकुलेटर क्या काम करता है, कैलकुलेशंस करता है, सिंपल सी डिजिटल कैलकुलेटर बन गया। पास्कल ने उसे नाम दे दिया कि ये पैस्कलाइन कैलकुलेटर है, और इसी के इस पैस्कलाइन कैलकुलेटर को बाद में नाम दे दिया गया कि ये कंप्यूटर है। अब कैलकुलेटर का क्या काम है, कैलकुलेटर से भी हम काउंटिंग करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, यही काम है ना। तो कैलकुलेशन करने वाला कैलकुलेटर ही उसे नाम मिला कि ये कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर है। तो फिर इस सेंटेंस पे आते हैं कि कोई भी काउंटिंग में कैलकुलेशन में हेल्प करेगी तो वो कंप्यूटर है। तो ये तो थोड़ी उस पुराने पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसकी डेफिनेशन, आजकल की भी जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं कंप्यूटर की, वो भी सारा फिनोमेना यही वाला है, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है। तो ये इसकी हिस्ट्री में मजीद हम डिटेल से पढ़ेंगे कौन सी डिवाइसेस बाद में बनी। तो आपने सिंपल माइंड में ये याद रखना है कि कंप्यूटर ये नहीं है कि जिस चीज़ को हम देखेंगे स्क्रीन लगी हुई है, साथ इनपुट डिवाइसेस आ गई, आउटपुट डिवाइसेस मौजूद हैं, तो वही कंप्यूटर है, या लैपटॉप ही कंप्यूटर है। कंप्यूटर की बहुत सारी शेप्स हैं, जिस तरह मैंने वो तस्वीर का बताया। अब इस सेंटेंस के मुताबिक तो वो भी कंप्यूटर है। ये वुडन बैग इसको कहा जा रहा है, ये भी कंप्यूटर है। तो कंप्यूटर की फिक्स कोई प्रॉपर शेप नहीं है। हमने देखना है मशीन जो प्रोसेसिंग कर रही है, जो काउंटिंग कर रही है, कैलकुलेशन जिसकी मदद से हम कर रहे हैं, जो काउंटिंग में हेल्पफुल हो रही है, वो कंप्यूटर है। तो आज ये जो कंप्यूटर की डेफिनेशन हमारे सिलेबस के अंदर है, उस पर आते हैं। डेफिनेशन, Definition: Computer is a device
से आप कह सकते हैं that is used to process data into useful information. कि कंप्यूटर एक मशीन है जिसका काम क्या है, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना, डाटा को प्रोसेस करना और क्या बनाना, इंफॉर्मेशन. कंप्यूटर इज अ मशीन that is used to process data into useful information. अब डाटा क्या है? जो हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं वो डाटा है. इनपुट क्या होती है? चैप्टर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया, 2 में भी पढ़ाया कि जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए देते हैं वो इनपुट कहलाएगी. तो जो डाटा हम इंटर करेंगे वो इनपुट है. कंप्यूटर प्रोसेस करते और इंफॉर्मेशन जनरेट करके देता है. ये इंफॉर्मेशन हमारे लिए आउटपुट होती है. प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा इज कॉल्ड आउटपुट या इंफॉर्मेशन. डाटा की जो प्रोसेस्ड फॉर्म है, डाटा आफ्टर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड आउटपुट और इंफॉर्मेशन. प्रोसेस होने के बाद डाटा की जो फॉर्म बनेगी उसे हम कहते हैं ये इंफॉर्मेशन है. तो हम कंप्यूटर में डाटा एंटर करते हैं, इनपुट करते हैं ताकि कंप्यूटर क्या जनरेट करके दे, आउटपुट जनरेट करके दे. अब कंप्यूटर में जितने भी काम हो रहे हैं वो इसी फार्मूले के तहत हो रहे हैं. हमने डाटा देना है, कंप्यूटर उसे प्रोसेस करेगा और इंफॉर्मेशन बना के देगा. मैं मिसाल देता हूँ. एक सॉफ्टवेयर को मैंने ओपन करना है, एग्जीक्यूट करना है, चलाना है. उसकी फाइल सामने पड़ी हुई है, एग्जीक्यूटेबल फाइल, आइकन सा नजर आ रहा है. अब उसे मैं कैसे चलाऊंगा? उस पर कर्सर ले जाकर डबल क्लिक करूंगा. तो ये मैंने डाटा दिया. जब डबल क्लिक किया तो समझ ले मैंने कंप्यूटर को डाटा दिया, एक तरह की कमांड दे दी कि आप इसे ओपन करो. तो फिर पूरा वो जो चैप्टर 4 में हमने पढ़ा कि पहले वो जाकर फाइल लोड होगी मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी से फिर सीपीयू तक जाती है, फिर सीपीयू में प्रोसेसिंग होती है. तो ये सारा काम फिर प्रोसेसिंग होने के बाद मेन मेमोरी और फिर आउटपुट डिवाइस तक इंफॉर्मेशन जाती है. ये सारा काम जो हो रहा है ये प्रोसेसिंग हो रही है. सारा काम जो वर्किंग हो रही है इसे हम कहेंगे ये प्रोसेसिंग है. और एंड पे स्क्रीन पे जब उसका व्यू हमारे सामने आएगा तो हम कहेंगे हमें इंफॉर्मेशन मिल गई. मैं एक सिंपल सी और मिसाल देता हूँ. 20 + 20 जब हमने इंटर किया 20 + 20 तो वो डाटा कहलाएगा. जब कंप्यूटर के अंदर वो डाटा जाएगा तो सीपीयू चेक करेगा ये वैल्यूज कौन सी हैं, फिर इनमें ये जो सिंबल इस्तेमाल हुआ इसका क्या काम करना है, ऐड करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई. तो उसे पता चला कि ऐड करना है. तो उस ये जो सारा काम कंप्यूटर कर रहा है ये सारी प्रोसेसिंग कर रहा है, चेक कर रहा है कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं. रिजल्ट जनरेट करेगा फॉल्टी. तो फॉल्टी क्या होगी? इंफॉर्मेशन. कोई वेबसाइट ओपन करते हैं कंप्यूटर में, जब वेबसाइट इंटर करेंगे, इनपुट करेंगे तो हम कहेंगे हमने कंप्यूटर को डाटा दिया है. फिर नीचे लोडिंग होती है, वो क्या कर रहा है? वो चेक कर रहा है क्या ये फाइल मौजूद, ये वेबसाइट मौजूद है भी सही या नहीं है. ये सारी प्रोसेसिंग हो रही है. एंड पे हमें उसके वेब पेजेस खोल के हमें स्क्रीन पे सामने नजर आ जाएंगे तो उन्हें हम कहेंगे ये हमें इंफॉर्मेशन मिली है. तो कोई भी ऐसा काम कंप्यूटर में नहीं हो रहा जो इस फार्मूले से हट कर हो. हमने डाटा देना है, उसे प्रोसेस करेगा और इंफॉर्मेशन बना देगा. मैंने पीछे भी किसी लेक्चर में बताया था कि डेफिनेशन होती क्या है कि शॉर्ट वर्ड्स के अंदर किसी चीज के बारे में पूरे का पूरा बता देना. तो ये बिल्कुल शॉर्ट से वर्ड्स हैं जो कंप्यूटर को एक पूरे का पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये काम क्या करता है. तो ये इसकी डेफिनेशन आ गई.
थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन। आप जरा देखते हैं ये सवाल कैसे हमारी हेल्प कर रहे हैं। आजकल हम इसे किस सूरत में सवाल कर रहे हैं, तो इस पे तो हजारों बातें लिखी जा सकती है। एक तो जो आपकी फेवरेट बात है उसी से स्टार्ट लेते हैं कि हम इससे एंटरटेनमेंट हासिल कर रहे हैं। कंप्यूटर इज अ सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। फ्री बैठे हुए हैं तो बहुत सारी ऐप्स आई हुई हैं, फेसबुक वगैरह है, उस पर वीडियोस और पिक्चर्स हमारे जो फ्रेंड्स पोस्ट करते हैं वो हम देख सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐप्स हैं। व्हाट्सएप पे हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। यूट्यूब मौजूद है, कोई गाना हम सुनना चाहें, कोई वीडियो देखना चाहें, कोई नाच सुनना चाहें, कोई बयान वगैरह, कोई तिलावत सुनना चाहें, हर बंदे का सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट डिफरेंट हो सकता है। तो जिस बंदे का जो भी एंटरटेनमेंट में वो कहता है कि मैं गाने सुनूं, नाते सुनूं, तिलावत सुनूं, वो सारा मटेरियल हमें कंप्यूटर पे इंटरनेट की मदद से मिलता है। हम उससे एंटरटेनमेंट हासिल कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, घर बैठे कंप्यूटर की मदद से ऑनलाइन गेम्स खेल सकते हैं, ये भी एंटरटेनमेंट के अंदर ही आएगा। फिर ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन। जिस तरह आप अभी घर बैठे इंटरनेट पे यूट्यूब का चैनल बना हुआ है, वहां पर सारी वीडियोस हमारे लेक्चर्स की आती हैं, आप घर बैठे एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो ऑनलाइन एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। ऑनलाइन बैंकिंग का काम हो रहा है, ऑनलाइन बैंकिंग, बैंक का सारा सेटअप ही कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। जितना भी बैंक का सेटअप है वो सारा कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। जो एटीएम मशीन्स हैं उन सबको कंप्यूटर कंट्रोल कर रहा है। इसके अलावा एक सीडीएम भी आ चुकी है, कैश डिपॉजिट मशीन, पैसे जमा भी आजकल कंप्यूटर खुद ही कर लेता है। इसके अलावा पैसे मैंने कहीं बाहर भिजवाने हैं तो वो भी कंप्यूटर, सारे पैसे यहाँ से मेरे अकाउंट से पलक झपकने से पहले कराची में, दुबई में किसी और बंदे के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑनलाइन रिजर्वेशंस, टाइमों पे अगर मैंने जाना है लाहौर किस टाइम पे जाएगी, यहाँ से तलगाम से किस टाइम पे निकलेगी, वो सारा शेड्यूल मैं चेक कर लूँगा। फिर घर बैठे मैं सीट की बुकिंग करा सकता हूँ। दुबई जाना है, घर बैठे मैं बुकिंग करा लूँगा, टिकट वगैरह सारा अपना बुक कर लूँगा। फिर उधर जब पहुँच जाऊँगा एयरपोर्ट पे तो होटल की बुकिंग भी मैंने ऑनलाइन सारी कर दी है। गाड़ी, वो एक प्ले कार्ड सा उठा कर उस पर नाम होता है, आपने ड्रामों में, फिल्मों में देखा होगा, वो बंदे लेने आ जाएंगे, वहाँ से होटल में चला जाऊँगा। घर बैठे सारे काम हम कर रहे हैं। ऑनलाइन बिल्स पेमेंट, घर बैठे बिल्स की अदायगी हो सकती है। पहले लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता था, अब क्रेडिट कार्ड वगैरह मौजूद हैं तो घर बैठे हम बिल्स की पेमेंट भी कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसके यूजेस हैं, कुछ मैंने 5-6 बताए हैं। तो बुक पे जो पहला पेज है वो आपने पूरा थारोली रीड करना है। मेन आज का हमारा जो फोकस था वो यही था कि कंप्यूटर का वर्ल्ड कहाँ से निकला, कौन सी चीज़ कंप्यूटर हो सकती है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में मैंने बताया। तो कल से हम इंशाल्लाह इसका जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जो है ये हम एंड में उसे एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर के ख़त्म होने के बाद। तो इसके कुछ टॉपिक्स हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, हमारे लेक्चर मेरे मौजूद हैं चैनल पे। रमज़ान के अंदर जो ऑनलाइन क्लासेस हुई थी उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के टॉपिक्स जो हैं वो सारे ऑलरेडी हमारे हो चुके हैं। ट्रांसलेटर एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसलेटर का टॉपिक है वो भी हो चुका है। तो जब वो टॉपिक्स आएंगे तो मैं आपको उस वीडियो का बता दूंगा कि आपने वो वाली वीडियोस देखनी है जिसमें वो सारे लेक्चर ऑलरेडी अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।